Okay, anyway, I work with wedding photographers. This is my company. I have a YouTube channel as well. And today we are gonna see lead generation. So whenever we generate leads, we have three options. We can either get leads on Instagram, we can get them on WhatsApp, and we can get leads through Google Sheet. We can get them to fill a Google form or opt-in page in our landing page. So we'll see Instagram first. I will start with campaign structure. So whenever we want them to inquire us on Instagram, then we select this engagement objective. Never go with this meta suggestions, tailor, automatic and all. Always go manual. Automatic settings work for e-commerce and all, but is not working for service-based businesses like wedding photography. So this is engagement campaign and destination is Instagram. Choose campaign budget. Then if you are starting, start with 250 or something. So even if your ad fails, you lost only 250 or 500 rupees. Then our audience is soon to viewers. You have to select conversion location as Instagram. So this message destination and this deselect Messenger and WhatsApp, because we want people to message us on Instagram only. And always go separate, means you can go together as well, means Instagram plus WhatsApp, but for tracking it is better to do it separately. Performance goal should be maximum number of conversations. Value rules: if you are running an ad, means you are running an ad in Mumbai but you are getting leads from Pune, Nasik, nearby cities, then you can apply this value rule. Means you can create a criteria. You can select age. This is our age group. Then we can add one more criteria: location. So we are gonna say we want people from Mumbai only. We don't want to go out of Mumbai. Then you can do this, but you don't have to do it if you are not getting people outside of your city. So I'm gonna turn off this value rule. Then ignore this budget and schedule as well. Avoid publishing ads at night. Always publish them in the morning or in afternoon. And when you come to audience, select original audience, because this Advantage Plus audience is not working for wedding photographers. Meta is suggesting us to use this, but it is not working. So it's better to go with original, as our market is already very defined, our age group and all. Here you can select age. Also deselect this option, reach more people likely to respond. If you enable this, I'm in Nasik, it is maybe 200 kilometers from Mumbai, so I will also see your ad if this option is enabled. So disable this. In interest, have 5 to 6 interests. I prefer weddings, bride, wedding dress, wedding videography and wedding photography. These are 5 interests that I prefer. Even if you select one only, this wedding, still it is not gonna make that much difference, because Meta is not gonna target based on what we are putting here. They will focus more on creatives. So even if you put weddings, it will work. Then we have 2 ads in each campaign. If you are spending up to 2k per day, then have 2 ads in one campaign. If you are spending above 3k to 5k, then have 4 ads in one campaign. I like to turn this setting off because people forget about us when they see our ad in combinations. When other wedding photographers ads, then my ad, they will ignore me. This is something when they click on our ad, what they see. So let's create a new. We need to customize it. We can say congrats, then we can personalize it. Congrats Adarsh, you are gonna get the best wedding photography experience with us. Give them 1 or 2 options to send a message. When they send this message, you can say yes, please share your wedding date, location and WhatsApp number. So we can share all the details here, our packages and portfolio. Then you can save this template. Here, remove question. You can also add hi team. So this comes when someone clicks on our ad. This is automated reply.
You can go with means manual reply as well, means don't send automatic reply, then they will feel it is machine like, then people tend to ignore this thing. So I prefer not to send this message. Or what you can do is you can test two structures, means auto message, and see what is working best for you, manual or automatic. So this is automatic, they are gonna get automatic reply from us when they send a message, and this is manual, they are not gonna get automatic reply. I prefer this manual option, it works better, it feels real. Then coming to ad, you can go with image ad or video ad, anything you like. I will also show you how to create this ad. You can either keep this send Instagram message or get code. Then you can put a simple headline. This is just demo. I will also show you how to write primary text with ChatGPT of course. Call to action is very important. You need to tell them what to do. So this is the ad. Then you quickly duplicate this, rename it and change the creative. I am using this one for demo only. We will create creatives as well, then we will add. If you can see, just background is different. Headline video is same. Here is we are using yellow background, here we are using black. So it is inspired by dating app Bumble. Anyone have any doubt about this? So we can go to WhatsApp. What part do you want me to repeat? What did you say about Bumble? Okay, so this ad is inspired by Bumble, means I saw their ad, so they are running something like this. It's a perfect match and all. Then I just model it for wedding photography. We will see means how to write ads. That is also, let me open this. We are gonna cover all this. We are here right now. We have covered ideal campaign structure. Now we are on Instagram lead generation campaigns. You will get your answers in writing ads and creating ads. So let's say your engagement campaign is not working. When you want to get leads on Instagram, you can go with traffic as well. Means you tried many ads but your engagement campaign is not working or not getting good quality leads. Then what you can do is just change the objective, select it to traffic and do the same setup that we did. Message destinations. Just keep this in mind. This should be maximum number of conversations, not link clicks and all, or you will waste your money. Manual destination Instagram. Targeting and all as we have done here, so I don't have to type in again and again. Just remember this. You can go with auto message or manual message. Then again you create the ad, the same process that we did here. Anyone have any doubt in this, how we change the objective? And if you have tried this both, means you have tried engagement and traffic as well, still you are not getting results, then you can go with sales as well. Means that campaign is also getting good leads. So if you can see, I have this sales campaign running. The cost per lead is also good. So this is campaign name, means wedding leads sales 1. Objective is sales, budget is 333. Then our targeting is just Instagram. We want people to message us on Instagram. We don't have value rules. Then we have selected Mumbai and Pune. This is advantage. This is not Advantage Plus campaign. You can see Advantage Plus, that is off. That automatic thing is off. These are interest, and then these are our ads. It is always better to go with 2 ads in one campaign only. Means when you have 2 ads, both the ads get a good budget to perform. If you have 4 to 5 ads in one campaign but your budget is 300, then it doesn't make sense. No one is going to perform well. So in this ad, our headline is below the video, I guess. Yeah, and here the headline is above the video. So you need to play with this thing, which one works best for you. This is the primary text. If your wedding date is fixed, read this. Then they come to read this, then we say okay, we know that you are not gonna read this ad copy. So let's make it easier. Simply hit the button below
to send us message and we'll share all the details and all. Then again this wedding, hi Harsh, I am interested and want to book my wedding photography with you. So we have covered engagement objective, traffic objective and sales objective when it comes to get leads on Instagram. Anyone have any doubt? So let's get on WhatsApp if no one has any doubt. Okay, I consider that no one have doubts. Who is this? Vivo, please. Vivo V2055. You are messing with my screen. What that? Okay. Everyone understand this? Please type yes. People are taking notes but not responding here. Okay. When you duplicate campaign, don't forget to turn this off. Advantage plus audio. Now we are gonna get leads on WhatsApp. Everything is same here. Now you go to this message destination, you select WhatsApp and deselect Instagram. Targeting and all is same. Select your city. Always cross check these settings. When you duplicate, some settings automatically changes. Settings. भाई हिंदी में ही करते हो ऐसा लग रहा है, वैसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो ये इंस्टाग्राम इंग्लिश में किया, अब ये हिंदी में करते हैं व्हाट्सएप। कैंपेन डुप्लीकेट किया तो इसका ऑब्जेक्टिव सेम रखा, एंगेजमेंट, बजट रखा 250। देन ऑडियंस में आया अपन, यहाँ पे जो पहले सिलेक्टेड था इंस्टाग्राम, अब अपने को इंस्टा पे नहीं व्हाट्सएप पे लीड्स चाहिए, तो अपन ने व्हाट्सएप सिलेक्ट करके इंस्टाग्राम डिसलेक्ट कर दिया। परफॉर्मेंस गोल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशन ही है अपना, वही होना चाहिए। देन ऑडियंस में आके अपन ने अपना सिटी सिलेक्ट किया, ये रीच मोर पीपल वाला डिसलेक्ट किया, एज सिलेक्ट किया और इंटरेस्ट डाला। और ये इंटरेस्ट आप 5-6 सिलेक्ट कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन एक भी करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो अब क्या अकाउंट पे डिपेंड है कि आप कैसे, मतलब मैं जब भी कोई क्लाइंट का अकाउंट लेता हूँ तो टेस्ट करता हूँ। पहले मैं 5 इंटरेस्ट साथ जाता हूँ, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे तो एक के साथ जाता हूँ पूरा ब्रॉड। देन यू कम हियर, दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट. We are gonna see how to write this primary text with AI prompts and all, and how to create ads as well. So ads will be the same. For demo purpose, I am not gonna do anything here. In WhatsApp, you have option to add headline and description as well. So we are gonna say announcing most premium wedding photography industry. मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा अभी इसमें कि क्या लिखना है वगैरह, लेकिन जब मैं एक्चुअल में करता हूँ तो सब कुछ ठीक से करता हूँ. बुकिंग्स ओपन फॉर 2026-2027 weddings. Alvin, what? You need to create different template for WhatsApp because they don't support this customization. See, here we are saying congrats Adarsh, we have customization. Don't edit it, duplicate it. We have customization here, but here they are not putting my name here. So it's better to cut it. वो निकाल देना है वहाँ से, बाकी सब सेम रखना है. इसका नाम चेंज कर देना है तो समझ आए कि कौन सा मैसेज टेम्पलेट अपन यूज़ कर रहे हैं. व्हाट्सएप DM नहीं होता, मैसेज होता है शायद. और इसमें भी अपने को ऑप्शन है कि ऑटोमेटेड रखना है कि नहीं. जैसे ये वाला ऑटोमेटेड नहीं है कि उन्होंने रिप्लाई कर ये मैसेज भेजे तो उनको ऑटोमेटिक रिप्लाई नहीं जाएगा. तो अगर अपन ने ओके, इसका ऑप्शन ही नहीं शायद ऑटोमेशन का. शायद इस अकाउंट में नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक वो रहता है ऑप्शन. जब अब कोई ये ऐड पे क्लिक करेगा तो सीधा व्हाट्सएप पे जाएगा. पिछले कैंपेन में इंस्टा पे था. कौन बार बार रिजॉइन कर रहा है. सेम स्ट्रक्चर आप ट्रैफिक साथ कर सकते हो इसका, अगर एंगेजमेंट आपके लिए वर्क ना करे. सिर्फ ऑब्जेक्टिव चेंज करना है आपका. जहाँ से ऑब्जेक्टिव चेंज होता है और काफ़ी सारी सेटिंग्स भी चेंज हो जाती, तो उसको फिर से करना आपका. अभी अपने आप उन्होंने स्विच कर दिया एडवांटेज प्लस में, तो अपने को स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करना है. यहाँ भी एक बार चेक कर रहा है, यहाँ उन्होंने स्विच किया है क्या. यहाँ भी स्विच किया है. तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ओरिजिनल ऑडियंस यूज़ करो. एडवांटेज से बेटर है. जब मैं कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो एडवांटेज प्लस काम करता है मेरे लिए, अच्छा ही चलता है. लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी लीड जनरेशन के लिए नहीं चलता.
यहाँ पे फिर से वो एड्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे जैसे पहले किए। एड्स में सब सेम ही होता है जो यहाँ पे, सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं। टेस्ट करना आपको आपके लिए कौन सा वर्क कर रहा है कौन सा नहीं। तो ये व्हाट्सएप भी हो गया। सेल्स का भी सेम जैसा मैंने इंस्टा का बताया था, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये एड सेट में आना है आपको, और ये व्हाट्सएप के टाइम व्हाट्सएप सिलेक्ट करना है, इंस्टा के टाइम इंस्टाग्राम सिलेक्ट करना है। और ये परफॉर्मेंस गोल होता है ना, इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशन रखना है, और एडवांटेज प्लस यूज़ नहीं करना है, ओरिजिनल यूज़ करना है। समवन मैसेज में ये सब बाउंसर जा रहा है। ओके, can you read this? If you are not getting anything, you can please type in chat, and I have opened the window for chat. Oh, okay. People are typing in chat. I am just not able to see it. English is national language. Can you see my screen and see? Oh, not you, Siri. You need to let us unmute. Change setting. Okay, let's try it. Allow participant to unmute themselves. हो रहा है क्या कोई अभी unmute? चेक करो एक बार. If anyone is able to unmute themselves. YouTube से first time, Instagram से मिले, हिंदी मदर लैंग्वेज। ओके, मैं खाली में ये हो रहा था, गुस्सा हो रहा था। मुझे लगा कोई चैट में कुछ कर रहा नहीं कुछ। सर मेरे अकाउंट में एकदम से सारा मनी इन्वेस्ट हो जाता है। कैन समवन अनम्यूट देमसेल्व्स एंड स्पीक अप इफ बैकग्राउंड नॉइज इज वेरी लेस? बस ये समझा कि नहीं ये बता दो, सो आई कैन गो अहेड। मैंने भी मैसेज किया है सर। ये सर समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। ठीक। तो अभी तक व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, तो अभी अपन देखेंगे कि प्रीवीआर कैसे यूज़ कर सकते हैं और लीड फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं। तो लीड फॉर्म के लिए सिर्फ लीड्स का ही ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि किस में दूसरे करना है। लेकिन लीड फॉर्म क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि लोग फॉर्म तो फिल करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, फिर जब अपन डायरेक्ट उनको कॉल करते हैं तो ऐसा लगता है कोल्ड कॉल है वो। मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन इंस्टाग्राम DM को ही, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। व्हाट्सएप को भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ब्राइट से काफ़ी लड़कियाँ जो डायरेक्ट नंबर नहीं शेअर करती, पहले थोड़ा कॉन्वर्सेशन हो जाता तब कर। सर तुम्ही मराठी आहेत का? हो, मराठी आहे। ओके मराठी, हिंदी, इंग्लिश। मराठीत बोलायला आहे, सगळ्यात चांगली भाषा आहे। मराठी वाले जास्त दिसत नाही ना मला। सौरभ दिसतोय, तुम्ही दिसता, आशुग्राफी दिसता, हिंदी जास्त असेल। यहाँ पे अगर CRM यूज़ कर रहे हो तो कन्वर्जन लीड अपना परफॉर्मेंस गोल होता है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो, सिर्फ लीड फॉर्म ही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स ही बेटर है। ये एडवांटेज को पहले ऑफ करना है कैसे भी, तो ये फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स पे क्लिक करके स्विच सेटअप करके, और फिर भी चालू देखो ये। तो इसको ऑफ कैसे करते हैं? पहले तो ये सिटी सिलेक्ट कर लो, एज ग्रुप। अब ये जो सजेशन है ना, इसको ऑफ करना है। इसको ये ऑफ हो गया तो ये एडवांटेज प्लस भी ऑफ हो गया। डिटेल टारगेटिंग अगेन, वेडिंग्स, वेडिंग फोटोग्राफी, ब्राइड, वेडिंग ड्रेस, वेडिंग वीडियोग्राफी। अब बाकी सब भी डाल सकते हो, ये न्यूली इंगेज वगैरह, लेकिन कोई भी डालो। वैसे भी मेटा क्रिएटिव टारगेटिंग ही करने वाला, इस पर ज़्यादा नहीं करने वाला। अगर आपने ये भी डाला ना, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स वगैरह, उनको दिखेगी, लेकिन सबको ही दिखेगी, मतलब जिनका बजट ना हो उनको भी दिखेगी ऐड। तो अगर उनको फ़िल्टर करना है तो ऐड में फ़िल्टर करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमारे पैकेज 2 लाख से स्टार्ट होता वगैरह, तो जिसका उससे कम है वो आएगा ही नहीं ऐड देख के, वो इग्नोर कर देगा ऐड। लोग काफ़ी ये करते हैं, पीपल इन इंडिया वो प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स एंड ऑल। यहाँ पे वो ऑप्शन होता है ना बिहेवियर्स में, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, ये सब काफ़ी ऑप्शन, इनकम टारगेटिंग का भी ऑप्शन, लेकिन वो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब टेस्ट कर चुका हूँ। टॉप 10% इन इंडिया। इससे सिर्फ कॉस्ट पर लीड बढ़ती, जितना अब ये करोगी क्यों अचानक हो जाता है। और एक था जो आप सब में कर सकते हो, जैसे कि अब ये प्लेसमेंट ऑटोमेटिक इन्होंने एडवांटेज प्लस किया है, लेकिन आपको ऐसा चाहिए कि फेसबुक वाले लोग देखें ही ना ऐड, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स में आके इसको डिसलेक्ट कर सकते हो फेसबुक को। फिर भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि 5% का बजट आपका जो अलाउ ने किया है वो अलग है, उसको भी डिसलेक्ट करना है। और भी आगे जाना है, आपको एक्सप्लोर पे नहीं दिखानी है, सर्च रिजल्ट में नहीं दिखानी, तो उसको भी बंद करना है। फीड और स्टोरीज ही बेटर होती है। तो अब इंस्टाग्राम रील्स
प्रोफाइल रील्स, अगर ये भी नहीं चाहिए तो सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम फीड, तो इससे क्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो टाइम पास वाले होते हैं ना, रील रैंडमली स्क्रॉल करते होते या एक्सप्लोर देखते होते, वो नाही आएंगे। दादा मिनिमम बजेट किती लावायचं आपण? मिनिमम 250 पाहिजे. मिनिमम म्हणजे 100 पासून नाही स्टार्ट होऊ शकत. नाही ते खूपच जास्त कमी होऊन जाईल. मग तुम्हाला समजेल कसं काय की रिस्पॉन्स येतोय की नाही. हा ऍक्च्युली काय झालं ना, मी मेटा ऍड्स म्हणजे प्री वेडिंग वरती आहे ना ऍड्स रन केलेला हां ते एंगेजमेंट मधून. ओके. तर मी 100 रुपये टाकले तर त्यात 0.50 रुपये तर काय वाढतच नाही. हां ते मिनिमम 250 पाहिजे जर तुम्हाला चांगला रिस्पॉन्स पाहिजे असेल. अच्छा ओके. ऍक्च्युली मी आहे ना म्हणजे डिजिटल मार्केटिंग असते ना ते कोर्स मी जॉईन केलेला म्हणजे बघून बघून. मला तुमचा माहिती होतो. मी ऍक्च्युली तुमचा पेज आहे ना मी अगोदर पासून बघतोय युट्यूब वरती. ओके. हा मी तुम्हाला सबस्क्राईब पण करून ठेवलेला तुमचा पेज बघून बघून. ऍक्च्युली मग प्री वेडिंग कसं कसं ते तुम्ही करतात ना फटाफट. हां हा मग ते मी स्टॉप करून करून ना व्हिडिओ बघायचो. ओके. हा तर मी ऍक्च्युली थोडं डोक्याचा वरतून जायचा, थोडं कठीण आहे ना मेटा ऍड्स. नाही कठीण नाहीये, समजलं तर सोपं जर नीट बघितलं तर. हो पण असं तुम्ही एकदम फटाफट करत होता ना तर मी व्हिडिओ एकदम पॉज करून बघत होतो. हा तसंच बघताना स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचे सगळ्या स्टेपचे, कारण की जर एखादी स्टेप चुकली तर मग पूर्ण कॅम्पेन बिघडतं. हो हो पूर्ण कॅम्पेनच हे होतो. तर मी एक म्हणजे डिजिटल मार्केटिंग मधून करत होतो, त्यातून मला लीड्स काही आलेच नाही. डिजिटल मार्केटिंग मधून करत होता म्हणजे एक डिजिटल मार्केटिंगचा म्हणजे एक हे होता, वेबिनार होता. कोणाचा? चैतन्य कुलकर्णी आय थिंक सो. अच्छा ऐकलं नाही. ऐकलेत ना इंस्टाग्राम वरती तो ऍड्स वगैरे? नाही मी नाही. हा तर मी त्याचा कोर्स म्हणजे जॉईन केलेला. ओके. तर ते डिजिटल मार्केटिंग बद्दल होता. हां बट मला फोटोग्राफी बद्दल हवं पाहिजे होतं माहिती वगैरे. तर मी त्यांना विचारलं की एंगेजमेंट केलं तर आपल्याला लीड्स येतील का? हां ते बोलले की हो येतील. मिनिमम बजेट आपलं 100 रुपीज पासून स्टार्ट करा, तुम्ही इथे ट्रायल बजेट घ्या. अच्छा. पण हा तर मी केलो पण आलंच नाही मला लीड्स. नाहीच आहे ना. 100 रुपयाने कसं काय लीड्स येते? मी ऍक्च्युली मी माझा ऍड फंड्स मध्ये सुद्धा ना 200 रुपये मी ऍड केलेले. हो खरं लिटरली मला असं दुसऱ्या दिवशी मी बघतोय लीड्स आलेच नाही, ऍड्स चालू आहे तो. ओके. आता तुम्ही कसं एकदम परफेक्टली समजवतात की आपल्या फोटोग्राफी बद्दल कसं काय कसं आहे हे करायचंय. तो डिजिटल मार्केटिंग मध्ये शिकवायचा म्हणजे सेल्स कसं सराउट करायचं. मला ते तो फ्रीलान्सर साठी होता वाटतं तो कोर्स. हा 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 तो वेडिंग फोटोग्राफर साठी नव्हता. हा तर मी त्यांना विचारलं पण की हा वेडिंग फोटोग्राफी पण काम करेल का? ते हो बोलले. मी बोलला यार खरंच काम करेल की नाही माहिती नाही. हिंदीवाल्यांना समजत नाही, आपण Q&A लास्टला घेऊ. ओके ओके आपण मग हिंदी मध्ये बोलूया. हो Q&A लास्टला घेऊ. आता लीड फॉर्म बघून घेऊ आपण. हो हो चालेल. ओके तो अब इसमें ये हो गया. लेट मी रिपीट इट अगेन. तो लीड फॉर्म का कैंपेन चला है. ऑब्जेक्टिव रखे लीड्स, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये बजट रखे, मिनिमम बजट, देन इंस्टेंट फॉर्म, देन अपना पेज सिलेक्ट करें. या परफॉर्मेंस गोल जब अगर CRM नहीं, इट्स ओके कोई बुरा नहीं लगा भाई. अगर परफॉर्मेंस गोल अगर CRM हो तो अपने को परफॉर्मेंस गोल ये रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स. CRM मतलब वो ऐसा होता है एक सॉफ्टवेयर टाइप जिस पे लीड्स आते हैं आपके और वहाँ से आप सिग्नल दे सकते हो मेटा को, ये लीड क्वालिफाई थी या नहीं थी, अनक्वालिफाइड थी, स्पैम थी वगैरह. तो उस हिसाब से मेटा ऑप्टिमाइज करता है कैंपेन. लेकिन काफ़ी लोग नहीं करते होंगे CRM यूज़, तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स पे ही जाना है. ऑडियंस ये जैसे मैंने बताया एडवांटेज प्लस ऑफ ही रखना है. अगर आप ये स्टेप करना भूल गए, ये यूज़ एज सजेशन इसको डिसेलेक्ट करना भूल गए तो वो फिर से ऑन हो जाएगा. तो अपन ने इतना जो करे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ओरिजिनल ऑडियंस का, तो इसको ऑफ रखना है. सर विच कॉम इज़ टू यूज़, CRM टू यूज़, प्रीवीआर इज़ बेटर. CRM called PVR that works perfect with Meta, this one, and it is I think around 1200 रुपये पर मंथ समथिंग. ओके देन प्लेसमेंट में अपन ने देखा कि अपन सिर्फ अपना पूरा कंट्रोल है इसमें. तो अगर चाहे तो बाकी सबको ऑफ कर सकते हैं अपन, एक्सप्लोर वगैरह रील्स ये वो. सिर्फ स्टोरी और फीड में ऐड दिखा सकते हैं जो भी अपने लीड्स है उनको. लीड में जाके अगर इसमें भी 2 एड्स होंगे, ये भी मैं ऑफ कर देता हूँ, मल्टी एडवर्टाइजर ऐड.
ये SMS वेरिफिकेशन का नया है, इसको नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं। कॉस्ट पर लीड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, और उससे क्वालिटी में आएगा फ़र्क, क्योंकि वेरीफाई कर रहे नंबर, लेकिन फिर भी अपने को वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। लीड फॉर्म, दिस इज़ द लीड फॉर्म, लेट मी डुप्लीकेट इट एंड शो यू। ये SMS वेरिफिकेशन ऑफ करना है इसको। पहले तो नाम देना है वेडिंग लीड, ये लीड फॉर्म को। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म टाइप ये, मोर वॉल्यूम, हाई इंटेंट रखना है तो वेरिफिकेशन का वगैरह, लेकिन इसमें कॉस्ट पर लीड ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाएगी आपकी। ये डिलीवरी ऑप्टिमाइज रखना है, मैन्युअल रखना है इसको। हेडलाइन ये लिखिए कि कांग्रेचुलेशंस, विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। पहले ऐसा था, कुछ नहीं था हेडलाइन, तो फिर ये टेक्स्ट लिखा। इस सब हेडलाइन में भी कुछ नहीं था, तो ये ऑप्शनल होता है सब। तो जैसे ही कोई ऐड पे क्लिक करता है ना, सबसे स्टार्टिंग में ये सब देखेंगे कि अपन क्या बोल रहे हैं, उनको क्यों फॉर्म फिल करना चाहिए उन्होंने। तो इतने क्वेश्चन पूछते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू वांट टू गेट अ वेडिंग फोटोग्राफी कोटेशन एंड फ्री कंसल्टेशन विद अस। तो ये आसान होता है उनके लिए, सिर्फ हाँ या ना बोलना है। अगर स्टार्टिंग में ही अपन ने उनका बजट पूछ लिया तो काफ़ी लोग इग्नोर कर देंगे, ऐड आगे चले जाएंगे। तो एक बार अपन ने पूछे कि उनको रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मतलब कोटेशन लेने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, हाँ बोले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कितने दिन का इवेंट है उनका, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, व्हाटएवर। तो फिर उनकी वेडिंग डेट पूछते हैं अपन, व्हाट्स योर वेडिंग डेट, देन कौन से सिटी में होने वाला है, यहाँ पे लिखिएगा कितने दिन का इवेंट है, देन वेडिंग डेट क्या है, कौन से सिटी में है वेडिंग। अगर वेन्यू डिसाइड किया है तो क्या नाम है वेन्यू का, गेस्ट साइज क्या है, तो इससे पता चल जाता अपने को वेडिंग किस टाइप की, तो उस हिसाब से कोटेशन वगैरह बनाने में आसान होता है। देन बजट पूछते हैं उनका कि कितना बजट एलोकेट किया है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। तो ज़्यादातर लोग जो बताते हैं 1 से 1.5 लाख 2 लाख, कोई भी अपना असली बजट नहीं बताएगा। अगर ज़्यादा भी हो तो कम ही बताएंगे कि कुछ अच्छी ऑफर वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में उनका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी और जॉब टाइटल पूछते हैं अपन। ये बाकी और थोड़ा ट्रस्ट के लिए कि कोई अगर उन्होंने डिटेल्स शेयर की तो उनके साथ कोई अपन स्पैम नहीं करेंगे वगैरह। तो योर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट शेयर्ड विथ एनीवन, नो रीज़न व्हाटसएवर। तो इससे कॉन्फिडेंस आता था, जो अपना सबमिट करने के रेशियो है वो बढ़ता है उससे, कि लोग ज़्यादा कॉन्टैक्ट डिटेल सबमिट करें। और यहाँ पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता है कि अगर उनको चाहे तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने। और सब खत्म होने के बाद तो उनको अश्योरिटी देते हैं अपन कि ऑल सेट, यू आर गोना गेट प्रीमियम एंड अफोर्डेबल पैकेजेस विद अस, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून एंड ऑल। देन वी कैन हैव दिस व्हाट्सएप बटन, शो मी योर वर्क। तो इन्होंने इस पर क्लिक किए तो अपन उनको अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। सर, वी यूज़ द QR code at the event to release the pictures and we have a lot of data and formulas like numbers. Yes, you can do that. लीड फॉर्म समझ गया सबको। ये ऐड कॉपी इसकी, अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो जैसे कि ये ऐड कर दी मैंने। ऐड भी जब करते हो ना आप, ऑलरेडी अपन ने इंटेंशनली ऐड बनाई होती है, तो ये जो सिलेक्ट करते हैं ना 1 by 1 वगैरह, इसको मत करो। जो ओरिजिनल है वही रेशियो रहने दो। कभी कभी अचानक हो जाता है कि इन्होंने अपने आप उनकी कर ली सिलेक्ट, तो अपने को ओरिजिनल पे क्लिक करना है फिर। और यहाँ भी जो ये अपने आप कभी कभी ऑन हो जाता है कि ये जो अपन लिखते हैं ये ऑलरेडी इंटेंशनली है, तो इनका ऑटोमेटिक करने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे, व्हाट इज़ द बेस्ट साइज फॉर द क्रिएटिव, 9:16 इज़ बेस्ट। कैन यू सी द एड नाउ? दिस इज़ अ हेडलाइन। वंस दे क्लिक ऑन दिस एड, then they come on this lead form. Our ad 2 will also same, just we will change our ad. Everything will be same, headline, primary text and all, just this creative will be little different. Okay, we are done with lead form as well. The next option is this, means how you can generate leads through this landing page. Means if you have registered for my workshop, you have filled that form. Let me show you. Okay. I think you were in this page. 73% of people are using Facebook ads. We can generate leads through this as well. Means whenever you are filling this form, I was getting notification on my email. For example, I have created a landing page. This is a quiz. सबसे ज़्यादा वर्क फोटोज से होता है या वीडियोज से, दोनों से होता है। वीडियोज ज़्यादा बेटर करते हैं, कभी कभी फोटोज ज़्यादा बेटर करते हैं, अकाउंट पे डिपेंड है वो किसका। तो ये लैंडिंग पेज है, तो सारी ट्रैफिक अपन इस लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे एड्स थ्रू। जैसे कि अपन पहले करते थे, जब भी कोई ऐड पे क्लिक कर रहा है तो व्हाट्सएप पे जाएगा या इंस्टा पे जाएगा, लेकिन या फॉर्म पे जाएगा। इस कैंपेन में वो सारी ट्रैफिक इस लैंडिंग पेज पे आएगी,
तो वो हेडलाइन पड़ेगी, डू यू वांट टू नो विच इज़ द परफेक्ट वेडिंग फोटोग्राफी स्टाइल फॉर यू, टेक 30 सेकेंड टू डिस्कवर। तो जो ब्राइड या ग्रूम क्यूरियस होएगा तो यस पे क्लिक करेगा। जैसे ही उसने करा उसको एक क्विज दिखेगा। तो अपन पहले पूछे क्वालिफाई कर रहे हैं, आर यू गेटिंग मैरिड, और आपने फोटोग्राफर बुक करा है कि नहीं, तो नॉट येट। अगर वो बोलते कि नहीं शादी नहीं कर रहा हो तो वो बटन चला जाएगा, तो आगे जाएगी ही नहीं वो, तो फेक लीड्स नहीं मिलेगी। और अगर उन्होंने फोटोग्राफर भी ऑलरेडी बुक कर दिया है तो भी आगे नहीं जाएगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया रहेगा। तो स्टार्ट क्विज, तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं अपन कि आपको कैसी वाइब चाहिए आपके वेडिंग में, इमोशनल मोमेंट्स वगैरह, एलिगेंट, मिनिमल। तो डिसाइड करेंगे अपन कि वो किस टाइप का कपल। तो व्हाट फोटोज अट्रैक्ट यू, रियल इमोशंस। तो यहाँ पे मैंने इमोशंस करा, तो आगे भी मैं उसी रिलेटेड करूँगा। नेक्स्ट फिर से इमोशनल, व्हाट वुड फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू एज अ कपल, या प्लेफुल, एनर्जेटिक, वॉट एवर। देन विच मोमेंट यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, ग्रैंड एंट्री, फैमिली। इस पे से डिसाइड होता है कि वो उनकी पर्सनैलिटी टाइप वगैरह कैसे, सिनेमैटिक टोन्स, विजुअल कैसे उनको चाहिए, ब्राइट वगैरह, सिनेमैटिक। तो अपन बोलते हैं कि हमको समझ गया है कि आपकी वेडिंग फोटोग्राफी स्टाइल कैसी है, आप आपकी डिटेल्स दे दो। फिर अगर कोई बोलेगा ये मेरी 15 अप्रैल को शादी है, नाम आदर्श, फिर व्हाट्सएप नंबर। और जब ये गेट रिजल्ट पे क्लिक करेगा तो अपन उनको बोलेंगे कि आप इमोशनल टाइप के हो कपल। और जब भी ये होगा तब अपने को लीड आ जाएगी यहाँ पे, वो यहाँ पे दिखेगी टैली में, सबमिशन। तो अभी अपन ने आज 28 तारीख आज फिल करे, तो यहाँ दिख रहा हो मेरी वेडिंग डेट दिखी, यहाँ पे मेरा नाम दिखा, व्हाट्सएप नंबर दिखा। तो ये इसका एक ईमेल भी आ जाएगा मुझे, या फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, जैसा भी मैं बैकएंड में सेटअप करूँ। और इसके लिए जो कैंपेन यूज़ करते हैं ना, वो ये होता है, लीड्स का ही होता है, सिर्फ वो पिक्सल वगैरह सेटअप करना, वो सब एडवांस स्टेप है। मैं मतलब आपको ये नॉर्मली नाही समज रहा तो वो तो नाही समजेगा आपको। 250चे किती सेट्स लावावे लागतील, तुमचं जेवढं बजेट आहे त्याच्याने डिवाइड करून घ्या। जर 1000 रुपये बजेट असेल तर चार कैंपेन। ऑब्जेक्टिव इसका लीड्स रखना है, यहाँ पे आके इसको इंस्टेंट फॉर्म के अलावा वेबसाइट करना है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स सेम रहेगा। तो ये पिक्सल वगैरह ये मुझे नहीं लगता आपको समझेगा, तो बेटर आप जो तीनों पहले के उन पे ही फोकस करो। अगर किसी को लगता है उसको समझेगा तो चैट पे बताओ कि समझेगा, मुझे फिर दिखाता हूँ मैं कैसे करतो। क्विज फन इथे दिसतंय, हा राफ दिसता। तुम्ही ऍड पण बघितली असेल जर तुम्ही इथले जवळचे पुणे मुंबई वगैरे। कन्वर्जन इव्हेंट सर्च होता, तिथे पिक्सल असतं। जेव्हा आपण वेबसाईट वगैरे ट्रॅफिक यूज करतो ना तेव्हा ते लँडिंग पेजवाला यूज करतो। आता कुठे गेला टेला, इथे पिक्सल आहे बघा, हा कोड आहे ना, इथे पिक्सल ऍड केलं। त्या पिक्सलने मेटा सगळं ट्रॅक करतं की कोणते लोक या वेबसाईटला व्हिजिट करतायत। म्हणजे जर कोणी आपल्या ऍडवर क्लिक करून इथे येते ना, काही जास्त टाइम स्पेंड करते, आपल्याला समजून जातं ते, म्हणजे ते वेडिंग फोटोग्राफर हिंदीमध्ये बोल, म्हणजे आपल्याला समजून जातं की अपने को समझ जाता है कि वो वेडिंग फोटोग्राफर है, कोई ऐड पे क्लिक करके आया यहाँ पे। तो उनकी अपन फिर से कस्टम ऑडियंस बना के उनको रीटारगेट कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक क्विज नहीं लिया, क्विज लिया तो अपने को उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आ जाएगी अपने आप। और वो पिक्सल वगैरह सेटअप करना यहाँ पे होता है, वो इवेंट्स मैनेजर में। ओके, इनका नहीं ह्याचे काय वेगळे पैसे द्यायला लागतात काय कसले हे पिक्सल सेटअपचे? नहीं वेगळे पैसे नहीं द्यावं लागत, पण तुम्हाला लैंडिंग पेज बनवावं लागेल, तर आपको लैंडिंग पेज वगैरह बनाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो इतना आसान नहीं, जैसा जितना आसान है इंस्टाग्राम डीएम व्हाट्सएप मैसेज है ना, इतना आसान लैंडिंग पेज थ्रू लीड जनरेट करना नहीं है, काफ़ी टेस्टिंग करने पड़ते थे। जैसे आपने भी अगर रजिस्टर किया होगा तो इस वेबसाइट से किया होगा, तो ये भी एक लैंडिंग पेज ही है लीड जनरेशन का। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपने कितना टाइम क्या क्या देखा वो सब पता है, कितना टाइम स्पेंड किया है इस पे वेबसाइट पे। तो ये जो आपने वर्कशॉप रजिस्टर किया ना इसके थ्रू, ये इसको बोलते हैं कि लैंडिंग पेज से लीड जनरेट करना। लेट्स मूव ऑन। सो वी हैव कवर दिस एंड दिस एज वेल। एनीवन हैव एनी डाउट सो फार? किसी को कोई डाउट है तो फिर अपन एड्स में चलेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट, आई हैव, बताओ ना, अनम्यूट भी कर सकते हो। वीवो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, मैं ये कहता जैसे मैं ना मतलब जो वेडिंग का काम कर रहा हूँ मैं 10 साल से कर रहा हूँ। हाँ, मैं फ्रीलांसर ही कर रहा था। अब जो मतलब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ मतलब प्रोफाइल बना के मतलब काम करूँ, तो मुझे रिकॉर्डिंग भेटेल का आपल्याला? हाँ बताओ, सुन रहा हूँ। मैं बोलूँ? हाँ, मैं ये कहता हूँ मतलब मुझे वेबसाइट वगैरह सब बनाना पड़ेगा या खाली मैं पेज पे काम कर सकता हूँ? ऐसा नेसेसरी नहीं है वेबसाइट वगैरह बनाना। मतलब कस्टमर ट्रस्ट के लिए जो भी हो। हाँ, कस्टमर के लिए आपने बनाना ही चाहिए। अगर आपका फुल पोर्टफोलियो दिखाना है तो पिक्सी सेट वगैरह। कैन वी चेंज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इफ इट इज नॉट वर्किंग आफ्टर 2 days? यस, यू शुड आइडियली चेंज इट
आफ्टर 24 आवर्स इट्स एकदा जर कोणी लिंकवर एक बार जो किसी ने लिंक पे क्लिक किया तो उसको टारगेट कैसे करना है, फिर तिथे वहाँ कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आता है कि हाउ मेनी पीपल हैव विजिटेड योर वेबसाइट एंड ऑल. हाँ, समवन हैव आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू कस्टम ऑडियंस. आई फॉरगॉट टू गेट टू दैट. ओके शिवम, तो जब आप मतलब डेटा शेयर करते हो अपना, तब आपके पास शायद वो डिटेल्स आती होगी. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर. आदर्श भाई, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि लाइक हमारे मल्टीपल कैंपेन्स और मल्टीपल एड सेट्स वर्क कर रहे हैं एक टाइम पे, ठीक है? ओके. अभी हमारे पास में मान लो हमने सबकी टारगेटिंग व्हाट्सएप पर रखी. हाँ. या ऐसे समझो कि 6 कैंपेन्स थे, 3 का टारगेटिंग अपना जो है फाइनल एंड रिजल्ट क्लिक जो आएगा वो व्हाट्सएप पे आएगा, 3 का अपना इंस्टाग्राम पे आएगा. इंस्टाग्राम पे अगर हमारे लीड्स अच्छे आ रहे हैं और स्पैम्स या फिर अननेसेसरी डीएम्स जो होते हैं, कुछ भी रैंडम मैसेजेस वो नहीं आ रहे हैं, तो वो कौन से कैंपेन से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? पहली चीज, लाइक अगर अच्छे आ रहे हैं सारे, रैंडम या अननेसेसरी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें भी होता है कि हर कैंपेन से नहीं आ रहे होंगे फॉर श्योर. वो 3 में से कोई 1 या 2 ही कैंपेन होंगे. तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? और उन 2 में भी कौन से सबसे बेस्ट है? मतलब एक सेग्रीगेशन का स्टेप होता है ना, वो कैसे पता चलेगा? और दूसरा अपना ये कि जैसे व्हाट्सएप पे अगर आ रहे हैं और मान लो स्पैम्स आ रहे हैं काफी सारे, लेकिन उसके बीच में अब टोटल 3 कैंपेन है, अगर हमारे पास लेट्स से 10 लीड्स आए जिसमें से 5 टोटली स्पैम्स थे, 3 हाई क्वालिटी इंटेंट वाले थे और 2 जस्ट ऐसे जो होते हैं ना विंडो सर्फर्स कि आएंगे, रेट पूछेंगे, घोस्ट करके निकल जाएंगे, उस टाइप के हैं. तो इस तरह का जो सेग्रीगेशन है कि कौन सी लीड हमारे कौन से कैंपेन से आई है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत बहुत आ रही है अभी रिसेंटली. तो अपने एक कैंपेन में 2 एड्स होते हैं, राइट? तो जब भी कोई अपने को मैसेज करता है ना इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे लिख के आता है कि इन्होंने किस ऐड को रिस्पॉन्ड किया. तो जो लो क्वालिटी आ रहे, विंडो शॉपर्स आ रहे, तो अपन देखने का कि किस ऐड से आ रही है, तो वो ऐड बंद कर देने की, तो अपने आप परफॉर्मेंस. बट व्हाट्सएप पे जैसे वो नहीं पता चलता. जैसे मैंने एक कैंपेन रन किया था, उसमें क्या था, सेम एड सेट रहे, मतलब 2 अलग एड सेट बने. एक जो है वो डिलीवर करेगा इंस्टाग्राम पे, एक करेगा मेरा व्हाट्सएप पे. अभी सेम एड है, सेम कॉपी है, सब कुछ सेम है, इवन टारगेटिंग भी ऑलमोस्ट सेम थी, 1-2 चीजों को छोड़ के. वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में डिफरेंस आता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज किया. इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्पैम्स आए, उससे सिर्फ स्पैम्स, टोटल रैंडम मैसेजेस, कोई कुछ रील शेयर कर रहा है, ऐसा सब कुछ उल्टा सीधा. लेकिन व्हाट्सएप पे जो आया है वो सिर्फ जेन्युइन लीड्स थे. तो इस चीज को कैसे फिक्स कर सकते हैं? लाइक इफ आई वांट कि मेरे जो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि क्रिएटिव सेम है तो परफॉर्मेंस आई कैन एक्सपेक्ट कि सेम आनी चाहिए, राइट? तो इस चीज को कैसे फिक्स करेंगे? तो आपका कैंपेन स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा. आपने ओरिजिनल ऑडियंस यूज करी होगी कि नहीं वो नहीं पता. ओरिजिनल ऑडियंस पूरा प्रॉपर. ओके. हाँ, तो उससे ही ज्यादा फर्क पड़ता है. मतलब कैंपेन स्ट्रक्चर कैसा हो, तो अगर आपका एंगेजमेंट से आपको फेक लीड्स आ रहे तो आप ट्रैफिक ट्राई कर सकते हो. अगर ट्रैफिक से भी सेम हो रहा है तो सेल्स कर सकते हो. आई मीन ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्टिव से सिमिलर ही वो आ रहा है एक रिजल्ट. अगर बात करें कि आउट ऑफ 10 लेट्स से 2 या 3 इंटेंट रखते हैं टू हैव अ कन्वर्सेशन एंड कनेक्ट, एंड लेटर ऑन उसमें से आपको पता ही है 3 में से कन्वर्जन तो कितने का ही आएगा फिर. और एक ऑप्शन है कि अपन क्रिएटिव डिफरेंट करें. तो सेम अगर क्रिएटिव व्हाट्सएप के लिए वर्क कर रहा है तो इंस्टा पे मत करो. उसके लिए वो भी ट्राई किया है, वो भी ट्राई किया हुआ है. तो मतलब मेरा कॉल वही है, मतलब मेरा क्वेश्चन वही था कि हाउ एम आई सपोज टू डिफरेंशिएट कि कौन से कैंपेन ये किस पर्टिकुलर उससे लीड्स अच्छे आ रहे हैं. लेट्स से मैंने 1-2-3 कैंपेन एक साथ चलाए. अभी अगर मैं तीनों का ही जो वो है रिजल्ट वो उस पे लेके आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उसमें से मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्रिएटिव भी सेम जा रहा है, कॉपी भी सेम रख रहे हैं, सिर्फ एड सेट को चेंज किया था टारगेटिंग के बेस पे. तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपको नहीं पता चलेगा, कंफ्यूजन होएगा ना, क्योंकि सेम एड्स चालू है आपके, तो डिफरेंट एड रखने, तब कंफ्यूजन नहीं होगा. अच्छा, ओके. तो जब भी मैं कैंपेन चलाता हूँ ना, तो मैं सेम एड्स के कैंपेन नहीं चलाता हूँ. सब कैंपेन में अलग अलग एड्स होते हैं, तो मतलब एक झटके में पता चल जाता है कि ये कैंपेन नहीं चल रहा है तो इसको बंद करो, दूसरा चालू करो. अच्छा, ठीक है, ओके. कस्टम ऑडियंस जो लिस्ट होती है कस्टमर की, वो कस्टमर लिस्ट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो. मेरे पास अभी कोई सैंपल के लिए नहीं है, लेकिन आपको ये आपका बिजनेस, चलो दूसरा अकाउंट देखते हैं. क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस, क्लिक ऑन दिस कस्टमर लिस्ट, देन यू कैन अपलोड एन ऑडियंस हियर. नेक्स्ट करके यहाँ पे जब आप अपलोड करोगे आपकी शीट, तब आ जाएगा. और मिनिमम वो 100 चाहिए कॉन्टैक्ट जो भी हो,
जितने ज़्यादा उतना अच्छा है, उतनी अच्छी लुक अलाइक ऑडियंस भी बनती है। मतलब जो भी गेस्ट वगैरह उनको सबको तो दिखेगी। अगर आपके पास आपके कस्टमर का भी डेटा है सारे क्लाइंट्स का, तो भी आप अपलोड कर सकते हो। वेयर वी गेट डैट आपके पास होएगा ना, मतलब जिन्होंने आपके पास अभी तक वेडिंग शूट करी उनका डेटा तो होएगा, तो उनका एक शीट बनाओ, उनका नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। व्हेन टू स्टॉप कैंपेन, इफ मतलब आज कैंपेन स्टार्ट किया अपन ने, और आज तो रात को नहीं करना है, सवेरे करना है। अगर कल सवेरे किया आपने 10 बजे और अगले दिन 10 बजे तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसको तुरंत बंद कर देना। लोग बोलते हैं कि 7 दिन रुको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मतलब वो इतना वर्थ इट नहीं है। यू आर सेइंग कि अगर 24 आवर्स में रिस्पांस नहीं दे रहा है तो वो कैंपेन एनीवेज नहीं वर्क करने वाला। हाँ, चलना है ना तो कोई भी ऐड चल जाएगी तुरंत एक दिन में। ओके। अगर नहीं चल रही, क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे पर्सनली काफ़ी एड्स बहुत अच्छी लगती है मेरी, लेकिन जब टेस्ट करता हूँ तो नहीं चलती, और जो मुझे लगता है ना ठीक है ना, कुछ नहीं। हाँ, वो होता है कि लाइक एक बहुत हाईली क्रिएटिव विजुअल्स कई बार नहीं परफॉर्म करता, बट बहुत शिटी ग्राफिक होता है तो वो भी कर जाता है। कैन वी ब्लॉक स्पैम मेंबर्स? आप मैन्युअली उनको ब्लॉक कर सकते हो आपके इंस्टा डीएम में। एंड एक चीज और, जो सीपीएम होता है, लाइक आई वाज कंसल्टिंग विद समबडी, तो उन्होंने कहा कि आपका सीपीएम हाई जाना चाहिए। इज इट मैंडेटरी कि सीपीएम हाई ही होना चाहिए? मतलब ई कॉमर्स में तो ये चीज होती है कि सीपीएम अगर हाई है आपका, तो आपका जो इंटेंट है, लोगों का जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली जाती है। हाँ, ऐसा होता है। बट लेकिन मैंने 1500 रुपए कॉस्ट पर लीड वाले भी अकाउंट देखे, तो कोई इतना फर्क नहीं क्वालिटी में, मतलब नहीं तो 1500 रुपए पर लीड का कॉस्ट आ रहा है, दैट इज फाइन। बट उसमें वो लीड क्वालिटी कैसी है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन से पैरामीटर्स मैटर करेंगे? जैसे मुझे जिसने कंसल्ट किया था, उसने मुझे बोला था कि सीपीएम पे फोकस कर लो। ऑल्दो मैंने सीपीएम ट्राई किया, इट डिड वर्क आउट, बट ज्यादा टाइम के लिए नहीं। वो एक बहुत टेम्पररी क्विक फिक्स जैसा कुछ चल गया था। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। दिखा दो, देखो ये यहाँ पे आप कॉस्ट पर लीड देख रहे हो क्या? मतलब अगर समझो 1512 हाँ नहीं चल रहा है तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, इतना खींचने की जरूरत नहीं होती। ओके। और ये मतलब ऐसा नहीं होता कि कॉस्ट पर लीड ज्यादा है तो क्वालिटी भी अच्छी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जिनकी कॉस्ट पर लीड, अभी इस कैंपेन की कॉस्ट पर लीड देखो सबसे नहीं, बट उनको कोई तो पैरामीटर होगा जिससे हम अपनी ऑडियंस की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते चले जाएं। वो तो अपने ऐड में से करना पड़ेगा आपको, ऐड्स ऐसी बनानी पड़ेगी तो कि जो लो बजट वाले वो ऐड देख के आई ना वहाँ से ही भाग जाए, कि मतलब आप डरा दो उनको ऐड में कि हमारे पैकेज इतने से स्टार्ट होता है वगैरह। ओके, बट इससे लाइक एक सर्टेन ऑडियंस जो होती है वो भी तो जा सकती है। लाइक अगर मैंने स्टार्टिंग अपनी लेट्स से 300K से दे दी, तो देयर माइट बी समवन हु इज लुकिंग फॉर 250K। ऑल्दो 50K का डिफरेंस हमें बहुत ज्यादा नहीं लग रहा, बट क्लाइंट्स माइट फील इट अ बिग गैप कि अगर 300K से स्टार्टिंग है तो इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। तो जो डिस्कशन का स्पेस है वो तो क्लियर आउट हो जाता है ना। राइट, इसलिए अपने को रखना ही नहीं है वो, मतलब वॉल्यूम पे काम करना है। मतलब अपन बात करके रिजेक्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग में क्यों करना है? कम से कम अपने पास आए तो सही वो इंक्वायर करने। समझो अगर मेरे पास फोटोग्राफर्स आते हैं, मेरी सर्विस फी 12,000 है, तो अगर जिसको नहीं करना वो तो नहीं करना उसको। तो स्टार्टिंग में मैं अगर लिख दूँ ऐड पे मेरे कि आई चार्ज 12,000, तो कोई आएगा ही नहीं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। सर जैसे कि ना लास्ट ईयर हमने एक सोशल मीडिया मैनेजर रखी थी जो इंस्टाग्राम पोस्टिंग और वो सब संभालती थी। अब मेरा चैनल तब तक 1000 के अराउंड फॉलोअर्स पर था। उसने क्या करा, उसने कहा कि ये 1000 फॉलोअर्स अगर आप किसी को भी अपना प्रोफाइल भेजते हो, 1000 फॉलोअर्स के अंदर वो एक क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती है, चाहे आपकी कंपनी 30 साल पुरानी हो। बट आज की डेट में थोड़ा सा थिंग्स हैव चेंज, तो आजकल इंस्टाग्राम की प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। उन्होंने वो उस टाइम पर कुछ फॉलोअर्स मिलते थे, अभी भी आई गेस मिलते हैं। उन्होंने वो बॉट अकाउंट से वो फॉलोअर्स बढ़वाए, तो वो उन्होंने हमारे 3 से 4,000 फॉलोअर्स बढ़वाए, ठीक है। एंड उसके बाद 2 महीने बाद जब हमने वहां पे, ये भी नहीं था कि हमने अपना अकाउंट डेड रखा हुआ था, हमने रेगुलरली पोस्टिंग शुरू करी। उसके बाद 2 महीने बाद उन्होंने ना एड्स रन करने शुरू करे, और जब एड्स रन करने शुरू करे तो उसके अंदर टारगेटिंग सारी, मतलब तब तक वो इंटरेस्ट के अंदर 10 इंटरेस्ट 12 इंटरेस्ट ऐसे वो कर रही थी। लेकिन मतलब हमने अवेयरनेस भी उस टाइम पे करी, हमने लीड्स भी करी, हमने अलग अलग एडसेट्स बेसिकली चलाई कि कौन से हमें रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, एंगेजमेंट भी करा। अब उसके अंदर जो हमारे पास लीड्स आ रही थी, मतलब जो उससे रिस्पॉन्स आ रहे थे, आइदर वो, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, हमारी कंपनी दिल्ली एनसीआर के अंदर मेजरली काम कर रहे हैं, वो आ रही है
राजस्थान के अंदर वो वहां से बजट दे रही है 25,000 बजट, तो मतलब इस तरीके की लीड्स आ रही थी। और बहुत सारी जो लीड के ऊपर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो वो हमें मैसेज करके बोल रहे हैं, जैसे ऑटोमेटेड मैसेज चला गया तो वो मैसेज करके बोल रहे हैं कि आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो। तो हम बड़ा ही ना मतलब कंफ्यूजन में चले गए थे कि ये हुआ क्या। उसके बाद हमने वो सोशल मीडिया मैनेजर को नहीं हमने कंटिन्यू करा कि भाई ये तो चैनल के ऊपर मतलब और चीजें आगे खराब ही कर रही है, तो हमने कंटिन्यू नहीं करा, वी हैड टू लेट हर गो। उसके बाद से सर हमने एड्स नहीं चलाई है, बिकॉज हमें वही डाउट है कि हम एड्स में पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे एंड रिजल्ट अगर फिर से वैसे ही आए उसको कैसे रिफाइन करा जाए। अब मैं एक एक फॉलोअर हटा नहीं सकता, उसके अंदर ये भी है कि पुराने कस्टमर्स भी हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, बट वो जो डेड अकाउंट या बॉट अकाउंट या फिर जो अकाउंट जो आजकल वो मोबाइल से मैनेज कर रहे हैं लोग कि भैया 100 अकाउंट से एक साथ मैनेज हो रहे हैं, इस तरीके के अकाउंट है, उनको मैं कैसे वो करूं, बिकॉज वो हमारे काम को कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। जो हमारा बजट है वो लोग सोचते भी नहीं है उतना बजट, तो उसके ऊपर हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक करा जा सकता है। पहले तो ट्राई करो आप वो जो फॉलोअर्स में जब अपन जाते हैं ना इंस्टा पे, तो कभी कभी इंस्टा ने अपने लिए निकाल के रखी होती लिस्ट फ्लैग फॉलोअर्स, तो अगर वो ऑप्शन आए तो बेटर है, तो एक साथ सब रिमूव हो जाएंगे। अगर नहीं आए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि जिन्होंने भी पास में फेक फॉलोअर्स वगैरह लिए ना तो उनको फेक लीड्स बहुत ज़्यादा आती, तो उनके ऐड टेस्टिंग करने ज़्यादा टाइम लगता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन वो मतलब समझो अभी मैंने आपके अकाउंट पे किया, आपकी सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, जेन्युइन लीड्स आ रहे हैं, लेकिन फिर 1-2 महीने बाद फिर से ऐसा होगा कि फेक लीड्स आएंगे, तो जो ऐड इतनी अच्छी चल रही थी फिर से बंद करके फिर से नई टेस्टिंग, तो ये मतलब लाइफ टाइम प्रॉब्लम ले लिया आपने फेक फॉलोअर्स। क्योंकि हमें भी नहीं पता था, उन्होंने कहा कि नहीं इस तरीके से ही होता है। एंड सच बताओ तो अब मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, उससे पहले मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था कि डिजिटल साइट भाई हमने एक टीम मेंबर रखा हुआ है तो वो उसका काम है, वो अपने आप करता रहेगा, हम अपना ऑपरेशंस के ऊपर और जो हमारी बाकी सोर्सेज है जैसे बिजनेस आ रहा है हम उसके ऊपर फोकस कर रहे थे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं या तो सारे फॉलोअर्स हटाऊं, एक एक करके मैनुअली करवाऊं या कैसे करूं, तो बड़ा ही, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि मतलब सब ठीक रहेगा, वो भी अब नहीं समझ में आ रहा है। तो आप इस पे क्या गाइड कर सकते हो कि जिससे थोड़ा सा एटलीस्ट बेटर हो जाए? तो उसको इग्नोर करो आप, वो जो हुआ, तो आप ज़्यादा एड टेस्टिंग करोगे ना तो हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। सिर्फ ऐसा होना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, मतलब आपकी ऐड अगर 1-2 महीना चल रही ना तो ऐसा नहीं रहेगा कि वो चलती रहेगी, तो कभी ना कभी खराब होगी, तो प्रिपेयर रहना है फिर नई एड्स लगाने। मतलब जिनका ये सीन है ना फेक लीड्स का, उनका वैसा ही होता है। ओके ठीक है, परफेक्ट। मैं इस चीज के ऊपर फिर स्टार्टिंग में ही आप प्रिपेयर रहो कि मेरे पास काफी एड्स है, अगर ये कभी चलना बंद हो गई तो मैं दूसरे भी है मेरे पास लाइनअप। समझ गया, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब चलो ये हो गया, अब एड्स पे आना है अपने को। तो ऐड, अब जो जिस टाइप से मैं ऐड लिखता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा AI यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप सब के लिए AI का ही बताता हूँ। ये प्रॉम्प्ट है, तो अगर इसको आपने Hey, Adarsh, sorry to interrupt you. Yes. I had a similar question with what Shivam asked. तो बेसिकली है क्या, जैसे बॉट्स वाला सिनेरियो इन्होंने बोला, तो इनके तो सोशल मीडिया मैनेजर ने ऐड किए थे, तो दैट वाज इंटेंशनल, तो उसमें तो पक्का ही बॉट्स होंगे, प्रॉपर फेक अकाउंट्स। आई डोंट नो, समहाउ लास्ट ईयर मेरे एक रील बहुत ज्यादा पुश ले गई थी, तो उस पे व्यूज अच्छे आए थे, उस पे सारा रीच अच्छा था, इट गॉट अ वेरी गुड पुश, बट उसकी वजह से मेरे पे ना डमी फॉलोअर्स आए थे। नाउ दे आर नॉट एग्जैक्टली बॉट्स, दे लाइक उन अकाउंट से भी स्टोरीज पे व्यूज आते हैं, सब होता है, बट आई स्टिल नो कि ये कहीं पे भी रियल पीपल तो नहीं है फॉर श्योर। जिस तरह के अकाउंट्स का उनका बिल्डअप है, जिस तरह से मतलब लाइक्स नहीं आते उनसे, कोई एंगेजमेंट नहीं होता, बस स्टोरीज पे व्यूज आ जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, और वो वहां पे स्टैटिक है, वो कहीं गए नहीं है। हाँ, वो मेरा भी एक बार 1 मिलियन में रील गई थी, तो उसके बाद वैसे ही लोग आने लगे, अभी भी स्टोरी वगैरह फोटो लाइक। भाई मेरा तो सिर्फ 10,000 गया था व्यूज। अच्छा। उसमें ही मेरे को करीब 400 या अराउंड फॉलोअर्स गेन हुए थे। आई डोंट नो समबडी एल्स डिड इट, क्योंकि उस टाइम मेरे अलावा कोई मैनेज नहीं करता, मार्केटिंग पार्ट मेरे अलावा कोई नहीं देखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मतलब पेड ने लिए ना खुद से, नहीं, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जो डेटा सेट्स होते हैं हमारे, लाइक मेटा इज ऑल अबाउट डेटा व्हेन यू आर रनिंग एड्स, तो कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं जो कि डेटा सेट सेल करते हैं। So is there any particular type of data set that we can buy to like integrate with our ad and see the performance getting any better? नहीं, ऐसा कुछ मत करो, मतलब आसान है, इसको मुश्किल क्यों करना है? अगर करना ही है कुछ बाहर से लाना है तो अपना खुद का डेटा लाओ।
जो Or what exactly, like? कस्टमर की लिस्ट एक हो गया, जो वेडिंग में गेस्ट आते हैं वो एक हो गया। अच्छा, ठीक है। आप मतलब शेयर करते होगे उनके साथ कंटेंट, तो उनका ईमेल आईडी वगैरह सबमिट करवाते होगे ना। हाँ, ईमेल आईडी भी काफी होता है। ठीक है, बट मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह के फॉलोअर्स आ जाते हैं तो इससे हमारा एड का किसी भी तरह का जो वो होता है रिजल्ट, वो अफेक्ट होता है या नहीं? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। नहीं, वैसे नहीं होता है। अगर अपने आप ऑर्गेनिकली आए तो नहीं होता है, लेकिन अपन ने खुद से करे थर्ड पार्टी से तो होता है। मतलब इट्स लाइक कि वो 2 से 3 दिन में कुछ 400 फॉलोअर आए थे। हाँ, वो ठीक है, उसका कुछ नहीं। ओके। अगर कोई भी But अकाउंट still they're dummy accounts, सबके तो। जेन्युइन नहीं होते, हाँ डमी अकाउंट्स बहुत है। तो And if let's say somebody buys for building this credibility thing, राइट, जैसे उन्होंने बोला कि वो मीडिया मैनेजर ने कहा था कि क्रेडिबल हो जाएगा, तो कोई 10-12 हजार फॉलोअर डाल लेता है नए अकाउंट पे, या लेट्स से 1-1.5 साल पुराने अकाउंट पे, इज इट इवन वर्थ इट इन एनी सेंस अदर देन जस्ट शोइंग ऑफ? नहीं, बहुत। अभी उन्होंने यही पूछा था ना कि उन्होंने थोड़े से 4-5 हजार ले लिए थे फॉलोअर्स, तो तब से फेक लीड्स आ रहे हैं, तो लाइफ टाइम प्रॉब्लम है। तो मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इट्स गोना ब्रिंग यू फेक लीड्स एनीवेज। हाँ, एक बार वो कर दिया। अगर आप बॉट्स परचेस करोगे तो वो आपको मेटा के ऐड को अफेक्ट करेगा ही करेगा। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, नो? ऑलराइट, थैंक यू। तो अपन ने ये प्रॉम्प्ट यूज़ किया। ये ऑलरेडी मेरे जितने भी मैंने आज तक एड्स बनाए, ऐड कॉपी लिखे, तो उनको सबको चैट जीपीटी में डाला था और उससे ये प्रॉम्प्ट लिया था। तो जब भी अगर आप ये डालोगे तो अपने आप हेडलाइंस, सब हेडलाइंस और फुल ऐड कॉपी आ जाएगी। तो अब इसमें से देखना आपको कौन सी पसंद है। अगर ये 7 में से भी कोई पसंद नहीं आई तो उसको फिर से बोलना है कि गिव मी मोर, आई डोंट लाइक दिस। तो मुझे पहले ही पसंद आ गई है, स्टार्टिंग की अच्छी दिखी, तो इसको सिलेक्ट करना है। एक नया डॉक बनाना है, जैसे मैंने अभी ये डेमो के लिए बनाया। तो हेडलाइन की जगह हेडलाइन, तो ये ऐड के ऊपर रहेगी। जो अपना क्रिएटिव है, क्रिएटिव मिडल में होता है, उसके ऊपर हेडलाइन होती है, क्रिएटिव के नीचे सब हेडलाइन होती है। तो ये हेडलाइन फिगर आउट कर लिया अपन ने कौन सी रखने वाले अपन। सेकेंड चीज़, आप सब इसको मैच होने वाली सब हेडलाइन करने की। स्टॉप बिफोर यू बुक एनी फोटोग्राफर, रीड दिस, यू डिजर्व वेडिंग फोटोग्राफी एंड नेचुरल बिकॉज व्हेन लाइट फेड। तो ये भी उसको दिस मेक सेंस, मीन्स ये इसको हेडलाइन को मैच हो रही। आप काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये तो अपने को जल्दी सिखाने के पर्पज से जल्दी कर रहे, प्रोसेस सिखा रहा हो सिर्फ आप। अब ये दोनों मैच करेंगे, स्टॉप बिफोर यू बुक एनी फोटोग्राफर, रीड दिस, तो ये सब हेडलाइन होगी। बिकॉज व्हेन द लाइट फेड्स एंड ऑल। और आप लिख सकते हो बिकॉज वी हैव क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है अपने को। वी हैव अनबिलीवेबल वेडिंग फोटोग्राफी पैकेजेस दैट आर नेवर ऑफर्ड बिफोर। तो एक क्यूरियोसिटी हो गई कि अगर आप सच में कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहे हो 20% वगैरह जो कभी नहीं दिया है, तो आप यूज़ कर सकते हो। इससे अच्छा ये ऊपर वाली लग रही मुझे। ये बाकी जो डेकोर वगैरह ये सब AI से लिखते हैं तो काफ़ी सेम लगता है। जब अपन खुद से लिखते हैं अपने मन से तो अच्छा लगता है। ये ऐड कॉपी चैट जीपीटी के मुझे पसंद नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं आपको सिखा नहीं सकता कि खुद से कैसे लिखे, उसके लिए पूरा कॉपी राइटिंग सीखना पड़ेगा, मज़ा नहीं। तो अपन बोलेंगे राइट प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी दैट मैच विद दिस हेडलाइन एंड सब हेडलाइन। तो यहाँ पे अपनी हेडलाइन डालनी है और सब हेडलाइन भी डालनी है। तो ये हेडलाइन सब हेडलाइन हो गई। फिर भी वही आ गए वो व्हेन द डे इज ओवर, पता है ना भाई। तो यहाँ से ही मुझे अच्छा लग रहा है। फॉर अ लिमिटेड टाइम डायरेक्ट टू द पॉइंट ही अच्छा होता है। तो यहाँ से इतनी ऐड कॉपी ले सकते हो आप। जो जेनेरिक ज़्यादा लग रहा है ना, क्योंकि हर कोई अब चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, तो सब सेम होते इग्नोर हो जाते हैं। छोटा करना पड़ता आना चाहिए। फॉर अ लिमिटेड टाइम वी आर ऑफरिंग। इसकी टाइपोग्राफी ठीक कर लेनी है, अलाइनमेंट्स वगैरह। कोई कुछ कर रहा है क्या? ये एनोटेशन कौन यूज़ कर रहा है? अपन स्टार्टिंग में आते हैं। अभी अपन जहाँ से अपन ने ऐड बनाए थे, तो एक ही कैंपेन लूँगा, सबके लिए सेम ही प्रोसेस होती है। जो ऐड 1 ऐड 2 है अपने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट ये था, अपन ने जल्दी में जो किया था, तो अब ये रखेंगे। पूरा ही कॉपी हो गया। इसको यहाँ से पहले ठीक करना है कि पढ़ने में आसानी हो पाए। ये फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड। अब ये पढ़ने में भी आसान है। तो इसको ऐसा कर देना है जब भी आप कोई चैट जीपीटी वगैरह से ऐड कॉपी उठाते हो, सेम इसमें भी वही ऐड करेंगे अपन। या अगर कुछ चेंजेस करने भी है तो आप ये फर्स्ट लाइन में करो। जो ये मिड सेक्शन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो लिमिटेड टाइम निकाल दिया, समझो अपन ने। यहाँ से स्टार्ट किया, वी आर ऑफरिंग सेम जो अपन ऐड में लिखने वाले हैं। यहाँ से ऐड को डिलीट कर देना है क्योंकि अपन अब नई ऐड बनाएंगे। तो अब ऐड बनाते अपनी हेडलाइन और सब हेडलाइन यहाँ पे लिख रखी ऐड में कौन सी यूज़ करनी। आपको ऐड कॉपी तक का समझा? हेडलाइन सब हेडलाइन कैसे लिखी, ऐड कॉपी कैसे लिखी, वो समझा?
यहाँ पे ऐड बनाएंगे अपन। दिख रहा है क्या ये सबको? मेरा फ़ोन दिख रहा है? हेलो, फ़ोन दिख रहा है क्या मेरा किसी को? यस, मे ये क्लियर है क्या? तो मतलब कंटिन्यू करेंगे अपन। अब शायद सेंटर है बराबर। तो वीएन में आना है, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट। पहले आपका जो कंटेंट है वीडियो वो सिलेक्ट करनी है। समझो ये वीडियो किया मैंने, इसको सेंटर में लाना है सबसे पहले। फिर इस पर क्लिक करके अपने को उस पर बैकग्राउंड डालना है। तो इसको मास्क कर देंगे अपन। वाइट और ब्लैक दोनों ट्राई कर सकते हो, मेरे पास काफ़ी सारे। पहले वाइट पे करके दिखा दो, सबके लिए आसान हो। मास्क किया, इन्वर्ट किया, इसको फ्रेम के रेशियो के हिसाब से कर लिया। थोड़े कॉर्नर से कर लिया। ब्राइटनेस अब अच्छा दिखेगा शायद। दिख रहा है ना सबको ये क्लियर? और एक ही तो ये हो गई वीडियो। अब अगर बैकग्राउंड चेंज करने तो इसी को मैं रिप्लेस करूँगा। तो मैंने काफ़ी बैकग्राउंड सेव करके रखे, तो जो आपके ब्रांड के हिसाब से मैच हो रहा है उसको यूज़ कर सकते हैं आप। समझो अभी ये रेड भी कर सकते हैं अपन इधर। अब ये रेड में हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइट ही अच्छा था, तो फिर से वाइट पे ही जाएंगे। वाइट ही बेटर है। ये सेटिंग्स ये मेटा एड्स के लिए जो सूट करी थी वो 1080p, FPS 30 और बिट रेट 10। इसको एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट हो गई। तो फिर इंस्टा का एक ऐप है एडिट्स, इसमें आना है। उसमें ये वीडियो अपलोड करनी है और टेक्स्ट ऐड करना है। तो अपनी हेडलाइन क्या थी? टॉप बिफोर यू बुक एनी फोटोग्राफर। फॉन्ट अलग करना है अपने ब्लैक। दिख रहा है क्या सबको? ये अपने आप मूव होता है कैमरा सेंटर से, दिख रहा है वो। तो ये हो गई हेडलाइन। इसी को डुप्लीकेट करके अब सब हेडलाइन लिखेंगे अपन। सब हेडलाइन बड़ी थी तो अपन इसका फॉन्ट भी चेंज करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस समझ आना चाहिए। और इसको छोटा कर देंगे, इतना ठीक है। हेडलाइन में क्या है? बिकॉज वी हैव अनबिलीवेबल। तो ये एक ऐड बन गई यार। तो जो अपन ने ऐड कॉपी लिखी वह बन ये अपनी नई ऐड। सबको समझा ऐड कैसे बने? सर ऐड ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 1 मिनट तक। अब ये ऐड बन गई, ये अपनी कॉपी ऐड, ये सब परफेक्ट मैच हो रहा है। हेडलाइन, सब हेडलाइन और ये प्राइमरी टेक्स्ट। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि अपने को लोगों को कम, मेटा को ज़्यादा सिग्नल देना है कि अपने को किसको दिखानी है अपनी ऐड। तो जितना ज़्यादा अपन अच्छा कर, तो किसको ये ऐड अच्छी लग रही है, मतलब अपने को 1 मिनट भी नहीं लगा बनाने। ये ऐड अच्छी है कि नहीं? आप किसमें से किसको लगता है कि नहीं परफॉर्म नहीं करेगी, इतनी अच्छी नहीं? ट्राई करके देखो कोई वर्कशॉप के बाद कल। और सेम अगर अपने को इमेज बनाना है ना इसका ऐड का, तो अपन ये इसमें कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं ये यूज़ करता हूँ कीनोट। तो समझो अब ये कीनोट आ गया अपना। इसको मैंने डुप्लीकेट किया और जो वीडियो थी वो यहाँ पे ले आया। इसको स्टोरी वाला फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा मुझे, लेकिन अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से छुपा सकता हूँ शेप वगैरह ऐड करके। अभी मुझे तो ये हेडलाइन के लिए मैं अलग सेक्शन, इसको कलर ब्लैक वगैरह, ये सब हेडलाइन के लिए अलग सेक्शन इतना सेपरेट कर दिया मैंने। दोनों के लिए जगह छोड़ दी ठीक से। तो अभी आया सिम लिखेंगे अपन, स्टॉप बिफोर यू बुक वेडिंग फोटोग्राफर। अब ये हेडलाइन हो गई। सब हेडलाइन जो बड़ी थी वो बड़ी भी लिख सकते। ये सिर्फ डेमो दिखा रहा, सबको कैनवा यूज करना आता ही होगा शायद। गेट कोड नाउ। तो इसको एज अ इमेज एक्सपोर्ट करेंगे अपन, जब एक्सपोर्ट करेंगे ना
49 नंबर, ये सब ऐड टेम्पलेट्स है मेरे, जितने भी अभी तक मैंने अच्छे एड्स बनाए उसके टेम्पलेट्स है। बट iCloud नहीं चाहिए भाई। अब वो एक्सपोर्ट हो गई तो इसको अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे कौन सा अच्छा दिखता दिखेंगे। वो तो इमेज तो इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ नहीं करने चाहिए था, मैंने डिलीट भी नहीं होता बाद में। ओरिजिनल, अब जो इमेज ऐड है वो ऐसे दिख जाएगा, जो वीडियो ऐड वैसी, मतलब इमेज ऐड भी मैं वीडियो इतनी अच्छी बना सकता हूँ लेकिन ये जल्दी जल्दी से दिखाने के लिए करी। ये ऐड टेम्पलेट से मतलब जो भी हेडलाइंस कॉपी वगैरह है ना तो सब इसमें कि अब क्रिएटिव एंड प्रीमियम वेडिंग फोटोग्राफी फॉर सून टू बी वेड्स लाइक यू, इस टाइप से एड्स जो देखी होगी आपने, ये सब एड्स मैंने बनाई है। तो इसके ये टेम्पलेट्स है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोटेशन आपका फिक्स है सबके लिए तो ऐसे इस टाइप की थोड़ी ऐड यहाँ पे वीडियो या इमेज लगा दी ग्रिड में, इस टाइप का गुड न्यूज़ देयर सून टू बी वेड्स नाउ यू डोंट नीड टू हायर अ वेडिंग फोटोग्राफर, फिर वो जस्टिफाई करेंगे प्राइमरी टेक्स्ट में। अगर वेडिंग के साथ प्री वेडिंग फ्री दे रहे हो तो इस टाइप की फ्री प्री वेडिंग शूट विथ योर वेडिंग फोटोग्राफी, योर वेडिंग डे इज इम्पोर्टेंट सो let us capture it the best way possible। और ये अभी बनाई और इस मतलब काफ़ी सब ऐड बना रखे, मतलब ये सब टेस्ट करके हो गया है जो अच्छी चलती है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। सबको समझा है ऐड कैसे बनाते, ऐड कैसे लिखते, ऐड कैसे बनाते, तो वो भी कवर हो गया है। यहाँ तक थे आप। अब Q&A पूरा, राइटिंग एड्स क्रिएटिंग एड्स भी हो गया, तो Q&A के बाद अपन बंद करेंगे। आप अनम्यूट कर सकते हो जिसको कुछ पूछना है वगैरह। सर जो अभी आपने चैट जीपीटी के ऊपर प्रॉम्प्ट डाला था जिससे वो इतनी डिटेल में उसने लिखा, बिकॉज मेरे साथ क्या था कि मैंने भी जब पहले एड के लिए प्रॉम्प्ट डाला था तो वो एड इतनी डिटेलिंग के अंदर नहीं आ पा रही थी। मतलब जनरली होता था कि एक हुक लाइन पर आ गए और उसके बाद 2 लाइन या 3 लाइन के अंदर एड खत्म होती है। मतलब मैंने अभी तक जितनी एड्स चलाई हैं 2-3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन, प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर 4 लाइन से ऊपर कभी वो ऐड गया नहीं है। तो प्रॉम्प्ट के अंदर आपने कुछ ऐसा मेंशन किया था कि वो और डिटेल बताया, बिकॉज आपने हम ये प्राइमरी ऑडियंस के लिए, मेटा के लिए कर रहे हैं। मतलब 3 साल में मैंने जितने भी एड्स वगैरह बनाए ना, जो मैं पहले खुद से लिखना था, तब तो एआई भी नहीं था, तो वो सब मैंने इसको दिए थे चैट जीपीटी को, और उसको बोला कि इसी स्ट्रक्चर में, इसी फॉर्मेट में चाहिए मुझे, इससे आगे जो भी मैं तुझे बताऊंगा, तो उस टाइप का उसने प्रॉम्प्ट दिया था। ओके, तो वो प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपको मेरे जैसी एड्स आएगी ऑलमोस्ट। सिर्फ आपको चूज करना पड़ेगा कौन से यूज करने, क्योंकि चैट जीपीटी हो अपने को चूज करना है। तो आप हमें ये प्रॉम्प्ट दे सकते हो? हाँ, मैं भेजता हूँ ये चैट में। हाँ प्लीज, थैंक यू सर। और कोई कुछ सवाल हो? और सर जब भी अभी वो आपने बताया था कि जिसके अंदर जैसे मैंने मेरी कस्टम लिस्ट है, कुछ मोबाइल नंबर की, कस्टमर की ईमेल आईडी, तो उसके अंदर हमारे पास जो पुराने क्लाइंट्स हैं, मतलब मेरी जो कंपनी है वो भी पुरानी है, तो हमारे पास बहुत लंबे टाइम से क्लाइंट्स जो जुड़े हुए हैं, सिर्फ उसके अंदर मैंने वो एक्सेल अभी साथ में जब आपका सेशन चल रहा था मैंने वो डाउनलोड करा, तो उसके अंदर 2 ऑप्शन है कि एक आप फोन नंबर और ईमेल आईडी और नाम, ये 3 चीजें उसके डालोगे। उसके अलावा कुछ और चीजें भी थी जो मतलब मेरे को जो डिटेल वाला था वो था। एंड अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास ईमेल आईडीज नहीं है, मेरे पास फोन नंबर्स है, तो अगर मैं फोन नंबर्स उसमें एक्सेल फाइल बनाकर इंपोर्ट करता हूँ तो वो वर्क करेगा या फिर उन लोगों को दिखाएगा नहीं, जस्ट बिकॉज वो पूरे
एट्रीब्यूट्स पूरे नहीं हो रहे हैं पर्टिकुलरली एक उसके करेगा वो, नाम और नंबर भी मैच करता है। नाम और नंबर भी मैच करता है, ठीक है, परफेक्ट सर, थैंक यू। वेयर कैन आई गेट ऐड क्रिएटिव्स, वो भी पेड है भाई, टेम्पलेट से वो। तो जैसे अब ये VN के आपने देखे होगी वो इंस्टा पे QR वगैरह आते हैं टेम्पलेट्स, तो अगर इसको यूज़ करोगे तो जो मैंने एड्स बनाए ऑलरेडी, आपको सिर्फ बैकग्राउंड और वीडियो चूज़ करनी है, आपकी ऐड ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो इस पर शेयर पे क्लिक करके VN ऐप में जाना है, तो ऐसा आएगा यूज़, ये क्रिएटिव को यूज़ करो। तो फिर अपनी वीडियो सिलेक्ट करनी है आपको। मेरे पास अभी ये वीडियो अवेलेबल है एक, तो इसको सिलेक्ट किया और फिर अब मुझे बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। तो मैं जाऊंगा बैकग्राउंड में जो भी डाउनलोड किया है मैंने, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, तो मज़ा नहीं आ रहा है इसमें क्योंकि वो टेक्स्ट मैंने ब्लैक रखा है, यहाँ पे अलग रिप्लेस करेंगे। वाइट, तो अब ये अच्छा लग रहा है। तो इसको जब मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा सेम सेटिंग्स, तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको, अलाइनमेंट्स वगैरह, आप सिर्फ वीडियो और बैकग्राउंड चूज़ करोगे तो अपने आप आपकी ऐड बन जाएगी। तो ये ऐड है। तो इतना ही है, इसको उठा के फिर जैसे मैंने ऐड किया वहाँ पे ऐड कर सकते हो आप इस ऐड को। गैलरी, तो ये एक टेम्पलेट से, और दूसरे जो टेम्पलेट्स थे वो ये ऐड टेम्पलेट से। इसमें भी दो फॉर्मेट है, एक 9:16 वाला जिसमें ये स्टोरी टाइप की ये जो ऐड है ऐसे, दूसरा 1:1, यहाँ पे दिख जाएगा सब ये ऐड टेम्पलेट्स, ट्यूटोरियल्स वगैरह। यहाँ पे कीनोट के ऐड है जो कैनवा में भी यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे VN के जो VN में यूज़ होएगी, एडिट्स में यूज़ होएगी। और क्या था, और ये मेरे ऐड से अब तक मैंने जो भी ऐड्स बनाए ना, तो अगर आपको हेडलाइन वगैरह में लिखने में दिक्कत होती है, इंस्पिरेशन चाहिए क्या वर्क करता है वगैरह, तो ये ले सकते। और इसमें ट्यूटोरियल से मतलब जो अभी मैंने वर्कशॉप में सब जल्दी जल्दी बताया वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का